I welcome you all in the next video tutorial of pharmaceutical biotechnology, that is BP605T. So dear students, in this video tutorial we are going to start unit number 4. So far let me show you unit number 5. Unit number 1 we have completed about the basic introduction to the biotechnology, and we have also completed unit number 3. So in this video we are going to start unit number 4, that is about the different ELISA techniques, prokaryotes and eukaryotes, microbial genetics, and the concept of mutation along with the biotransformation. So in this video tutorial, we are going to start the concept of the mutation, that is its types, its mutagens, and what are different type of mutations are there. So without wasting any time further, let's start the concept of mutations. Yes, mutation. It is defined as the sudden heritable change in the genetic material. So mainly mutation deals with the change in the genetic material, or you can say, or the character of an organism is known as the mutation. So the individuals showing these mutations are known as mutants. तो mutants किसको बोलते हैं? जिस भी इंडिविजुअल में म्यूटेशन आएगी उसे हम बोलेंगे म्यूटेंट. जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, जैसे म्यूटेशन इन द कोरोना वायरस. अगर कोरोना वायरस में म्यूटेशंस आ जाएंगी तो होगा क्या? जो भी हम थेरेपी यूज कर रहे हैं इस वक्त वो काम नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि उसके जेनेटिक मेकअप ही चेंज हो गया, उसके जेनेटिक मटेरियल में कंपोजिशन में चेंजेस आ गई. अगर तो sudden heritable change in the genetic material or the character of an organism is known as the mutation, and the individuals showing these changes are known as the mutants. There is another term that is known as the variant. So what is this variant? An individual showing an altered phenotype due to mutation is known as the variant. दो terms हैं, phenotype और genotype. If we talk about the genotype, the human genetic code could be found by their genotype. ये जीन से डील कर रहा है बेसिकली, तो ह्यूमन जेनेटिक कोड कुड बी फाउंड बाय देयर, हमारा एक अलग से एक पर्टिकुलर जीनोटाइप, एक जेनेटिक मेकअप है. सो इट डिटरमाइन द ट्रेट्स व्हिच विल बी एक्सप्रेस्ड. वो डिटरमाइन करेगा ट्रेट जो कि आगे चल के एक्सप्रेस्ड हो जाएंगे. और अगर फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल जीनोटाइप. फिनोटाइप जो है वो जीनोटाइप से ही डिटरमाइन होगा, और उसको हम विजिबल ट्रेट दे सकते हैं, जैसे कि बॉडी, हेयर कलर, उसकी आईज का कलर जो हमारा है वो फिनोटाइप है, जो बॉडी शेप है, जो हाइट है, वो हमारा फिनोटाइप में आएगा. तो वेरिएंट क्या है? एन इंडिविजुअल शोइंग एन अल्टर्ड फिनोटाइप ड्यू टू म्यूटेशन आर नोन एज द वेरिएंट. इफ यू टॉक अबाउट म्यूटेशंस, द फैक्टर और एजेंट दैट कॉज म्यूटेशंस. म्यूटेशंस होंगी कैसे? म्यूटेशंस की वजह से. तो म्यूटेशंस क्या है? दीज आर द फैक्टर और एजेंट कॉजिंग म्यूटेशन आर नोन एज द म्यूटेशंस. तो व्हाट इज जीन म्यूटेशन? तो म्यूटेशन व्हिच कॉजेस चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस ऑफ द जीन आर नोन एज द जीन म्यूटेशन. सिंपल सी बात है. जीन म्यूटेशन मतलब जीन्स में म्यूटेशन आना. तो म्यूटेशन which causes changes in the base sequence of the gene. Next are the characteristic of the mutation. अगर म्यूटेशन के characteristic की बात करें तो generally mutant alleles are recessive to their wild type और normal alleles. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये alleles क्या है, mutant alleles और normal alleles. So what is an allele? It is one of the two or more forms of given gene variant. अगर आपको याद हो तो आपने जीन्स में पढ़ा होगा, दो एलीज होते हैं. जैसे अगर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए एलीज होते हैं. एक नॉर्मल एली है तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा. ओके, जैसे कैपिटल ए नॉर्मल एली, स्मॉल ए शार्प एल्बिनो एली, एक एग्जांपल दे रखा है. तो सेकंड पॉइंट, मोस्ट म्यूटेशन हैव हार्मफुल इफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट सम ऑफ म्यूटेशंस आर आल्सो बेनिफिशियल. Spontaneous mutations occur at very low rate. Okay, so this is the characteristic of mutation. Some of the important characteristics also include, like some genes shows high rate of mutation, and such genes are known as the mutable genes. कुछ particular genes, especially mutations के लिए, they are highly susceptible. तो जैसे ही कोई चेंजेस होगा वो जीन में चेंजेस आ जाएगा. That's why it is written here that some genes shows high rate of mutation. They are known as the mutable genes. And what is this hotspot? Highly mutable sites within genes are known as the within genes के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर साइट्स होंगी जो कि म्यूटेशंस के लिए अगेन सस्टेप्टेबल होंगी, एकदम से चेंजेस हो जाएंगी, उन्हें हम हॉटस्पॉट बोल सकते हैं. हॉटस्पॉट बोला गया है. म्यूटेशन कैन अकर इन सेल, किसी में सेल में भी हो सकती है, किसी टिश्यू में भी, और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन. अगेन लिथल, सब लिथल, क्योंकि हमने देखा म्यूटेशंस आर हार्मफुल as well as beneficial. Also some of them are beneficial. Then subvital, vital, and the last one is the subvital.
So let's see lethal mutation. When the mutation causes death of all individuals undergoing mutation are known as the lethal one. Sublethal means 90% of individual may lead to death, and subvital mutations, such mutations kill less than 90%. These are known as the subvital mutation. So what are vital mutation? So vital mutation, when mutation does not affect the survival of an individual, are known as the vital. Again I am repeating, when the mutation does not affect the survival of an individual are known as the vital. And super vital, this kind of mutation enhances the survival of the individual, so these are beneficial. This kind of mutation enhances the survival of an individual. बट हार्मफुल और बेनिफिशियल की बात भी वही रहेगी. अगर सपोज कोरोना वायरस में म्यूटेशन आ गई तो वो कोरोना वायरस के लिए तो ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है. उस वायरस के लिए तो ठीक है लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं है. तो हार्मफुल और बेनिफिशियल जो कंसेप्ट है वो हमारे नजरिए से अलग है, एक वायरस के नजरिए से अलग है और एक प्लांट के नजरिए से बिल्कुल अलग है. तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये बेस थी ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल कितना सर्वाइव कर सकता है उसके बेसिस पे ये 5 क्लासिफिकेशन थी. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन के कॉजेज क्या है, कब होगी. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती क्या है, दीज आर अकरिंग नेचुरली विदाउट एनी कॉज, इसका कोई कॉज नहीं. और ये दे रेट ऑफ द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आर वेरी स्लो, इनका रेट बहुत ज्यादा स्लो है. फॉर एग्जांपल मिथाइलेशन फॉलोड बाय डीएमिनेशन ऑफ द साइटोसिन. सिंपल एग्जांपल से आप समझिए, यूवी लाइट ऑफ द सनलाइट कॉजेज म्यूटेशन इन द बैक्टीरिया. तो वो एक एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस का, जो कि विदाउट एनी कॉज एंड द रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी वेरी स्लो. सेकेंड वन इज इंड्यूस म्यूटेशन. एज द नेम इंडिकेट, नाम से ही पता चल रहा है ये इंड्यूस करवाई जाएंगी. तो म्यूटेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रीटमेंट विद आइदर अ केमिकल और द फिजिकल एजेंट इज नोन एज द इंड्यूस्ड म्यूटेशन. सबसे कॉमन एग्जांपल आप दिमाग में रखिए, एक्स-रेज कॉजिंग म्यूटेशन इन सेल्स. सपोज जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में भी आया, जैसे हम धान के खेत है और ऊपर आपने एक मोबाइल का टावर लगा हुआ है. अब ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो रहा है कि रेडिएशन हैजर्ड्स है वो बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में. तो इस पे भी रिसर्च चल रही है कि सपोज अगर कोई बहुत ज्यादा फसल भी है, कोई प्लांट भी है, कोई ऑर्गेनिज्म अगर बहुत ज्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में है, चाहे वो हमारी 4G रेडिएशन की ना हो, तब भी उसमें म्यूटेशंस आ सकती हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एक्स-रे causes mutation in some of the cells. Third classification is based upon the tissue of the origin. They are of two types, somatic and germinal. As the name indicate, if the mutation occur in the somatic cell, they are known as the somatic mutation. So what is somatic cell? Just read this line. Somatic cell, or you can say vegetal cell, is any biological cell forming the body of an organism. That is the somatic cell. So next one is the germinal mutation. When the mutation occur in the gametic cells or the reproductive cells. So gametic cells are also known as the reproductive cells. So these are the germinal type of mutations. Next classification of mutations is based upon the direction of mutation. तो आपने कम से कम 3 क्लासिफिकेशन इसमें याद करनी है. तो नेक्स्ट इज बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन, फॉरवर्ड और रिवर्स किस डायरेक्शन में जा रही है. फॉर एग्जांपल व्हेन द म्यूटेशन अकर्स फ्रॉम द, जब म्यूटेशंस अकर होंगी फ्रॉम द नॉर्मल एली टू द म्यूटेंट एली, जब नॉर्मल से म्यूटेंट की तरफ जाएंगी तब हम उसे क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड. और जब इसका उल्टा होगा, व्हेन द म्यूटेशन अकर्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द म्यूटेंट टू नॉर्मल एली, दैट इज नोन एज द रिवर्स म्यूटेशन. वेरी वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रेट अफेक्टेड, दैट इज विजिबल एंड द बायोकेमिकल. अभी हमने फिनोटाइप देख लिया, ठीक है, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर जो हमें दिखे. ओके, तो द म्यूटेशन विच इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप कैरेक्टर आर नोन एज द ऑब्जर्वेबल और द विजिबल म्यूटेशन. और द बायोकेमिकल क्या है, द म्यूटेशन विच इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द बायोकेमिकल्स एंड विच डू नॉट शो एनी फिनोटाइपिक कैरेक्टर, हम देखने में कोई चेंज नहीं लग रहा है, दैट इज नोन एज द बायोकेमिकल म्यूटेशन. तो लेट्स रिकॉल अगेन, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेस्ड अपॉन द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल. वी हैव कंप्लीटेड द लीथल, सबलीथल, वाइटल, सब वाइटल एंड सुपर वाइटल. बेस्ड अपॉन द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस हो सकती है, इंड्यूस करवाई जा सकती हैं. बेस्ड अपॉन द टिश्यू ऑफ ओरिजिन, किस टिश्यू पे एक्ट करेगी, सोमैटिक और जर्मिनल. बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स. बेस्ड अपॉन द ट्रेट, जो हमें दिखे, विजिबल भी हो सकता है और बायोकेमिकल्स. तो नेक्स्ट इज द
क्रोमोसोमल टाइप ऑफ म्यूटेशंस। अगर हम जीन बेसिस की बात करें तो एज पर जेनेटिक्स म्यूटेशन आर ऑफ टू टाइप, क्रोमोसोमल और द जीन म्यूटेशन, जिसमें कि क्रोमोसोमल में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन हो सकती है, ट्रांसलोकेशन हो सकती है, और जीन म्यूटेशन में हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस आती हैं, जिसमें भी इंसर्शन और डिलीशन टाइप की म्यूटेशंस हो सकती हैं। So I hope this will give a brief idea about the classification of the mutation. So we will do the next part in the next video. Thank you very much for your time. So I welcome you all in the part 2 video of mutations. So far we have completed the classification part, and in this video again we will see the chromosomal and gene mutations. So chromosomal again, let's see here again, may involve changing the structure, loss or gain. कैसे होगा? डिलीट कर सकते हैं, इनवर्स, ट्रांसलोकेशन, नॉन डिस्जंक्शन एंड डुप्लीकेशन। डिलीशन एज द नेम इंडिकेट, ड्यू टू ब्रेकेज अ पीस ऑफ द क्रोमोसोम लॉस्ट, जिसकी वजह से किसी चीज में भी म्यूटेशन आ सकती है, जैसे एग्जांपल इज गिवन, ब्रेक इन द क्रोमोसोम resulted in the deleted genetic material due to which mutation might take place. Second one is the inversion. Inversion, what is inversion? क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक ऑफ, अगर ये टूट जाए, ये ब्रेक ऑफ हो जाए, दैट मीन सेगमेंट फ्लिप्स डाउन बैकवर्ड्स, ये थोड़ा सा बैकवर्ड की तरफ इन्वर्ट हो जाए, फ्लिप हो जाए, इसमें लॉस नहीं होगा, बेसिकली ये इन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन सेगमेंट रीअटैचेस, उसके बाद ये इन्वर्ट होके रीअटैच हो जाए। लुक एट दिस, ब्रेक, देन invert, then reattach. So this is the inversion type of mutation. Next is the duplication, occur when the gene sequences repeat. अगर gene sequence repeat हो जाए, suppose this is gene sequence yellow वाला, अगर ये double repeat हो जाए means mutations आ गई. Then translocation, it involves true chromosome that aren't homologous. Part of one chromosome is transferred to another chromosome, that is known as a translocation. Look at this. This is the before translocation, this is after. So what is the difference between before and after? Look at this. Part of one chromosome is transferred to another. Let's see. तो इसका part इसमें, look at this, and here is the location change हो गई. तो पहले ये सिंपल व्हाइट था, ये पूरा डार्क था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मिक्सचर ड्यू टू ट्रांसलोकेशन. ये डार्क वाला पोर्शन आ गया ब्लैक एंड व्हाइट, अगेन ब्लैक व्हाइट. देन नॉन डिस्टिंक्शन, फेलियर ड्यू टू failure of chromosome to separate during meiosis. This was also mutation, very important, जिसकी वजह से कई diseases हो सकती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं सारे, ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन एंड फ्रेम शिफ्ट्स आएंगे. सो वी विल लुक इट वन बाय वन, एक ओवरव्यू लेंगे. पॉइंट म्यूटेशन क्या है? एट अ सिंगल पॉइंट, change of a single nucleotide. It involves the deletion, insertion or substitution of one nucleotide in a gene. I hope you remember the structure of this double helical structure of DNA, जिसमें कि शुगर एक बेस पेयर, जिसको हम बोलेंगे फॉस्फेट के साथ न्यूक्लियोटाइड. ओके, अगेन सी व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. 3 parts are there, sugar plus phosphate group plus नाइट्रोजन बेस. तो नाइट्रोजन बेसिस भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये आपने सब किया हुआ है पहले, ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो किसके साथ कौन सा पेयर होता है, जैसे ए के साथ टी, सी के साथ जी. तो एग्जांपल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन इज अ सिकल सेल एनीमिया डिजीज. सिकल सेल डिजीज इज अ रिजल्ट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, वेरी कॉमन, एंड अकर्स इन द होम्योग्लोबिन जीन. हीमोग्लोबिन जीन में ये म्यूटेशंस हो सकती है. देन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इंसर्शन और डिलीशिंग वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, जिसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस हो सकती हैं. So the frame shift mutation is a genetic mutation caused by number of factors, and which entire frame, this frame has been shifted or changed or mutated, you can say. Just see here, the deletion of the single nucleotide, इस single nucleotide के deletion से sometimes alter the subsequent reading framework. अगर ये change हो गया तो पूरा का पूरा framework ही change हो गया. So mutations में हमने देख लिया है type of mutation. Let's talk about mutants. So what are mutants? Individuals showing the changes of mutation are known as the mutants. So let's talk about some brief about the mutagens. किसकी वजह से mutations हो रही हैं? Examples देख लेते हैं. First of all, definition. A mutagen is defined as any physical or the chemical substance that can change the genetic material of an organism, thereby causing mutations.
They are of three types: physical, chemical, and biological. Example of the physical includes the X-rays, chemical include different type of chemicals like nickel, chromium, and the biological different microorganisms like Helicobacter pylori. So these are the common example of the mutagens. So I hope this will give you a brief idea about the mutation and its type. So thank you very much for your valuable time. In the end, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. I will definitely share the PDF with you of the mutation also. So thank you very much. See you in the next lecture.